Hello friends. So we are meeting in a recording session today. Otherwise every day we go live. Yes. Previous year question we are discussing. We are in our 21st episode because this is the 21st chapter. Out of 22 chapters of 11, this is the last but one chapter. So everybody of you know all these things. Those who are coming for the first time or not coming frequently, for those student, because just now before few minutes I have seen that many students which were missing the intermittent episodes, I have seen them like Isha Patil, who otherwise not there regularly. See, many students are there which are quite sincere at their studies, but they are not doing these things. These PYQ session is not taking this much seriously, which I think they are not doing the right thing. So मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन है आपको पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से एक बार तो अटेंड करना ही पड़ेगा. श्योरली इट विल ऐड योर मार्क्स. इससे आपको कंपलसरी बेनिफिट ही होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट्स ओवर दिस, लेट अस स्टार्ट द सेशन. सो हियर वी आर इन द फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज myelin sheath is produced by. So let us see, myelin sheath कौन प्रोड्यूस करता है. This is the question from 2017. So look at the option: astrocytes and Schwann cell, oligodendrocyte and osteoclast, osteoclast and astrocyte, Schwann cell and oligodendrocyte. So you need to understand this one. What is this myelin sheath? Okay, so according to presence of myelin sheath, we have divided the neuron into myelinated and non-myelinated. Okay, and who produces this myelin sheath? Okay, so the right answer for here this question, you see, because this point I don't think this is given in the NCERT. Okay, ये जो point है ये NCERT में दिए वाला है नहीं. So something which I say always I tell my students that always you shouldn't have an opinion that every knowledge should come from NCERT itself only. Okay, sometimes things come from questions. Okay, so answers for such question, they can be the proper thing, means kind of door for your knowledge. Okay, so whichever may be the door, we should welcome. So the right answer for this question, it is the Schwann cell and oligodendrocyte. Okay, you know Schwann cell very well. I'm very confident about this, that what is Schwann cell and all that, you know this one. You may not know this oligodendrocytes. Okay, ये oligodendrocytes क्या है फिर? So oligodendrocytes, these are the glial cells. You might have heard this word. Okay, a type of connective tissue you can say in the nervous system. तो ये glial cells है. So a type of glial cells where number of dendrons, they are not that much. Okay, so that is why the name oligo is there, prefix oligo is there. So these Schwann cells and particularly oligodendrocytes are there, which secrete or which produce this myelin sheath around the neuron. So the right answer for the first question is D, last one. Next question, receptor site for the neurotransmitters are present on. Now देखो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है. ठीक है, ये डायग्राम में सिनेप्टिक क्लेफ्ट बताए वाली है. ठीक है, और ये ऐसी जो डायग्राम है. ठीक है, सो दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, दिस वन इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ओके, सो दिस इज द axon bulb, isn't it? And inside this axon bulb there are such vesicles, synaptic vesicles. Okay, and now here are the receptors. Okay, so inside these vesicles there are neurotransmitter, isn't it? Now these neurotransmitter, when impulse arrives, these vesicles they fuse, and then there is dissolution of this wall, that is membrane, and then the chemicals are released. These released chemical, they are called as neurotransmitter, isn't it? So these neurotransmitter, they must be received, and for this the receivers are present on this postsynaptic membrane. So here right answer is option C, postsynaptic membrane. Okay, next move on to question next, third number. I hope everything is within the frame. Yes, it is. Question number 3 now. Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function?
So incorrect pairing we are supposed to identify here, incorrect. So we are supposed to identify false, not a true thing. Okay, so cerebellum language comprehension, corpus callosum communication between the left and right cerebral cortices, that is cortex, then cerebrum calculation and contemplation, medulla oblongata homeostatic control. So which is the wrong pair? This is what we are supposed to identify. Okay, so answer for this question. Okay, now the parts of the brain and their functioning, if we are very well acquainted, then only we can answer this question. Now what is the function of cerebellum? Cerebellum का function क्या है, ये अगर हमें ठीक से पता है तो ये question बहुत आराम से छूट जाएगा. Cerebellum, okay, the part of hindbrain, isn't it? So it has nothing to do with this language comprehension. Okay, at the most you can say balancing, orientation, posture, all such processes, they are maintained or controlled by this cerebellum and not language comprehension. Rather it is the part of cortex. Okay, corpus callosum communication, this is fine. Okay, the thickest band of the nerve fiber, particularly in the mammalian brain it is there. Then cerebrum calculation contemplation, this is also fine. Medulla oblongata homeostatic control, this is also fine. So the only wrong pair, it is with this first option, that is language comprehension. So this is the right answer. These are the right things, but they cannot be the answer because question is asking for the false or incorrectly paired. Okay, so this is language comprehension cannot be the function of cerebellum. Comprehension means to understand. Okay, question number 4. Destruction of the anterior horn cells of the spinal cord would result in the loss of. Now for this question, what is the anterior horn? You must know this. Okay, so for this one you should know this diagram of the spinal cord. Okay, so here we can see some butterfly or some EH-shaped structure. Okay, so the part which comes out, this is called as root, and the part inside, अगर जो अंदर वाला हिस्सा है हम उसे क्या बोलते हैं? हॉर्न. और जैसे ये बाहर आ गया तो इसे क्या बोलते हैं? रूट. सो दिस इज डॉर्सल रूट, इजंट इट? दिस इज डॉर्सल रूट. और उसी तरीके से इधर से जो आएगा वो क्या हो जाएगा? वेंट्रल रूट. अब ये दोनों साइड पे रहेगा. दिस इज वेंट्रल रूट ऑन दिस साइड. ओके, नाउ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट जॉइन फर्दर. अब ये आगे जाके क्या होता है? ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट इकट्ठा आ जाते हैं. एंड व्हाट दे प्रोड्यूस इज द स्पाइनल नर्व, इजंट इट? ये आगे ऐसे जाके क्या बना लेते हैं? ये स्पाइनल नर्व बना लेते हैं. ओके, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसकी ये स्पाइनल नर्व इस तरीके से बनती है, पेयर स्पाइनल नर्व की. जैसे वो साइड में बनी वैसे ये लेफ्ट साइड में भी बन जाएगा. तो इसमें पर्टिकुलरली कौन सा पूछा है? एंटीरियर. नाउ एंटीरियर मीन्स व्हाट? विच वन? एंटीरियर मीन्स वेंट्रल वन. ओके, सो यू मस्ट नो दैट हियर इट इज अ सेंसरी. डॉर्सल साइड में कौन सी न्यूरॉन है? सेंसरी है. नर्व कौन सी है? सेंसरी. और वेंट्रल में कौन सी है? मोटर है. अगर वही डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्टर्ब कर दी, तो क्या होगा? किस चीज़ का लॉस हो जाएगा? सो वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस, देन कमिशोरल इम्पल्सेस, इंटीग्रेटिंग इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस. सो क्वाइट ऑब्वियस इज वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस. ओके, सो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at. Now see, now to answer this question, rather than nervous system, you should have backup of that locomotion and movement chapter, because in that chapter this point is explained better. Okay, so in that chapter you might have seen that video over that particular area called as sliding filament theory. Okay, so in that part, in that video particularly, if you can recall, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे एक ऊपर से एक इस तरीके से मोटर न्यूरॉन बताए वाली है. ओके, और ये जो बताए वाली है स्केलेटल मसल्स बताए वाली इधर. ओके, तो यहाँ पर क्या है? व्हाट इज दिस एरिया? सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पर न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है. सो स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट. सो दिस इज द राइट आंसर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके, तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो वीडियो है ये आपको कहीं पर यूट्यूब पर भी मिल जाएगा. ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये वीडियो मेरे लैपटॉप में भी बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकी के जो चीज़ें इसमें जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पर स्टिमुलेशन नहीं होता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम आयन ऑन रिसीविंग द स्टिमुलस. ओके, मायोफाइब्रिल और ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, दे आर मींस नो पार्ट. ये आंसर का कोई मतलब हिस्सा भी नहीं है. Then question number 6. Injury
लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब। अगर हाइपोथैलेमस को इंजरी हो जाती है तो क्या डिस्टर्ब हो सकता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एक्सेसिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। So this is quite obvious and quite simplest, I should say, a kind of question. तो बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस का है। तो अगर हाइपोथैलेमस को ही अगर कुछ इंजरी हो जाती है, जख्म हो जाती है कोई एक्सीडेंट में, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो दिस प्रोसेस गेट डिस्टर्बेड। ओके, now look at the short term memory and all these things. These are the most of the short term memory. This is the function of cortex. Okay, or at the most you can say that amygdala or limbic system. Then coordination during locomotion, this is the function of the cerebellum. Okay, then third one is excessive functions such as executive functions such as decision making. तो ये भी cortex का ही हिस्सा बन जाता है, cortex along with that limbic system. So the right answer, क्योंकि इंजरी हाइपोथैलेमस को पूछ रहे हैं यहाँ पर, so regulation of body temperature will be the answer. Next question, the most abundant intracellular cation is, अभी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, abundant यानी quantitatively क्वेश्चन है ये. So intracellular cation, now not only with this chapter, with entire means complete living system के बारे में क्वेश्चन बन जाता है. So सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में कौन सा कैटायन लिविंग सिस्टम में यूज होता है? सो द राइट आंसर इट इज हियर K+ आयन. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, K+. ओके, Ca+, H+, Na+, they are there, but point is that quantitative, that is why K+ is the answer. Next, a diagram is shown showing axon terminal and synapse. Identify correctly at least 2 of A to D. तो यहाँ पर ये चीज़ें जो दी है उनको हमें पहले एक तो अच्छे से समझना होगा कि क्या क्या दिया वाला है. सो लुक एट दिस C. व्हाट इज दिस C? C इज अ सिनेप्टिक वेसिकल. ओके, C क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल है. फिर उसके बाद में B क्या दिखता है हमें? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल सकते हैं. और A क्या है यहाँ पर? A जो अभी हमने बोला था, दीज आर रिसीवर्स, इजंट इट? गेट है या फिर चैनल है जो रिसीव करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को. ओके, सो दीज आर रिसीवर्स. ओके, सो लेट अस रीड आउट द थिंग्स. बी इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब वहाँ पर लिखने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है. सो बी इज अ सिनेप्टिक कनेक्शन. ओके, डी इज अ K+ आयन. अब वन मोर थिंग, डी इज ऑल्सो देयर, तो वहाँ पर डी भी है. ठीक है, तो डी जो है वो कैल्शियम के तौर पर इसको ले सकते हैं, ना कि K+. राइट, सो rest second option, A is a neurotransmitter. Is it that? No, A, where is A? A cannot be the neurotransmitter, so B cannot be the answer. Okay, तो B जो है वो आंसर नहीं बन सकता है, तो उसको निकाल देते हैं पहले. So B cannot be the answer. Okay, wrong color I picked up. So B cannot be the answer. Then C न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, सिनेप्टिक वेसिकल बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे. सो डी ऑप्शन को देखते हैं. A इज़ अ रिसेप्टर. यस, A इज़ अ रिसेप्टर, फाइन. एंड C इज़ द सिनेप्टिक वेसिकल. C एज द सिनेप्टिक वेसिकल. यस, सो दिस इज़ द राइट आंसर. ओके, 4 के 4 सही हमें आइडेंटिफाई नहीं करने, 4 में से कोई भी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो sagittal section, sagittal means cross angle वाला sagittal section, ना ट्रांसवर्स ना longitudinal, ये दोनों में का हिस्सा एक sagittal lateral section भी बोल सकते हैं. is shown, identify at least 2 levels from A to D. Okay, so A is a cerebral hemisphere, it's fine. तो A तो ठीक है पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, A is fine. B is a cerebellum. So B, is it cerebellum? Cerebellum is here, it is. ये है cerebellum, so this one is wrong. C is a midbrain. Where is it? C, no, C is a pons. D is a cerebellum. Again this is also wrong. थर्ड में क्या है? A cerebrum. ओके, चलेगा. C pons, ये भी ठीक है. B को क्या बोल रहा है? कॉर्पस कैलोसम. नहीं, ये B कॉर्पस कैलोसम नहीं है. D मेडुला, ये एक आध बार हो सकता है, D मेडुला चलेगा, लेकिन B गलत है. सो द राइट आंसर विल बी C.
A. Cerebrum and C. Pons. Next question. The figure shows an axon terminal end. Select the option giving correct identification A to D. अब लगभग वही डायग्राम है. अब ये क्या है, 2013 के दोनों क्वेश्चन थे, एक मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन का था. तो क्वेश्चन इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन थोड़े बहुत ऑप्शन से मेरे ख्याल से ही खेले थे. नहीं, वही सेम चीज़ें है, लेकिन ऑप्शन का सीक्वेंस बदल गया. आई थिंक वहाँ पर सी था, यहाँ पर उसी इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलता है, डी. सी इज द रिसेप्टर. वी कैन बी, so no, it is not D, sorry. C is not receptor. C is a synaptic vesicle. So C, let us read it out. A axon terminal नहीं, A action potential नहीं, B neurotransmitter. क्या बोल सकते हैं हम ऐसा, B neurotransmitter और D receptor. अब इस क्वेश्चन में D हमें कहाँ दिख रहा है? No, just 3 labels are there in this diagram. One might have been scratched away. Let me bring the right diagram here. तो ये डायग्राम जो है गलत आ गई है शायद यहाँ पर. अगर पहली वाली डायग्राम को अगर हम उठा कर ला करके रख देते तो भी चलेगा. Let me have the right diagram. ये डायग्राम को उठा करके रख देते हैं कि बाकी की सी चीज़ें तो वही है, सी और बी तो वैसे का वैसे दिखता है. यस, इट्स फाइन. तो अभी देखते हैं इसे. तो क्या दिखता है इसमें, क्वेश्चन नंबर सी. Can we say that C is the receptor? No. So D is not possible. Then B, is it a neurotransmitter? We can say like this because it is just released from that synaptic vesicle. And D is a receptor. Receptor capsule D को बोल सकते हैं क्या? ये डायग्राम में तो नहीं है और ये डायग्राम में दिखाया नहीं है. Then at the most, सी दोनों डायग्राम मैंने उठा करके रख दिए यहाँ पर, बट नन ऑफ देम वांट टू बी. जस्ट गिव मी फ्यू मोर मोमेंट्स. I will bring you the right diagram. I think I have changed that diagram because that much it's not clear that much. Just a second. See here, this is the proper diagram. Yes, this one. So you can see this diagram now. This was the original diagram. Okay, now C. Yes, now in this diagram we have to accept that C is the receptor. See, these are the problems. See, this diagram was not clear, so I tried to bring this diagram with the same question from internet, and then that created that entire problem. So see here, C is the receptor. Yes, we can see here in this diagram. Let me pick up the proper color. This diagram is not clear actually. That is why, see, look at this area, such are. So these are the receptor, and D as the synaptic vesicle. So you can see this. I think D are the synaptic vesicle. This one. So yes, C, last option is that is option D is the right answer. Okay, so this D is the right answer. Okay, so the problem with only diagram, okay, I have to remove this diagram, otherwise it will mislead me again somewhere. Okay, so the right option is last one. Next question, the human hindbrain comprises 3 parts, one of which is. So human hindbrain का हिस्सा हमें बोलना है. 2012 का क्वेश्चन है. स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस. सो क्वाइट सिंपल. आई थिंक स्टूडेंट फ्रॉम समवेयर 9th 10th कैन ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन. तो हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है? इज इट स्पाइनल कॉर्ड, इज इट कॉर्पस कैलोसम, सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस? सो राइट आंसर इज cerebellum. Spinal cord is not the part of brain. Okay, corpus callosum is the part of forebrain, along with that hypothalamus as well. Okay, so the right answer is cerebellum as a part of hindbrain.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक. अच्छी बात है. Then right in front of the opening of the door. Okay, which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? अगर एक इसका मतलब ऐसे होता है कि इंसान ने अचानक से अगर कोई डरावनी चीज़ जैसे कि सांप देख लिया तो क्या हो सकता है. सो नर्वस के हिसाब से हमें बोलना है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला. ओके, फर्स्ट. सेकेंड, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. थर्ड, hypothalamus activate the parasympathetic division of the brain. Last, sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from the adrenal cortex. So quite lengthy question. Okay, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो गया, इसलिए ये पूरा का पूरा दिमाग में रखना भी कभी कभी मुश्किल जा सकता है. सो पॉइंट इज दैट एक तो चीज़ क्लियर है कि पैरासिम्पैथेटिक का कोई यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक है वो पैसिफाई करने वाला, शांत करने वाला है. तो सी ऑप्शन तो चला गया. ठीक है. अब न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट, ऐसा है क्या न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की जो स्पीड है उस पर कोई रैपिड स्लो ऐसा कुछ नहीं होता है. उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, फिर वो चाहे इमरजेंसी रहे या फिर ना रहे. ओके, सो ये भी उतना नहीं पॉसिबल नहीं है. अब बचे दो, पहला और लास्ट. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला. और लास्ट वाला वही चीज़ बोलता है लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलता है. तो अब हमें यहाँ ये चीज़ मालूम होनी चाहिए दैट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन और ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. तो इनको सीक्रेट कौन करता है? इज इट एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला? सो यू मस्ट नो दैट these are catecholamines which are secreted by adrenal medulla, okay, and not adrenal cortex. Adrenal cortex secrete corticoids, isn't it? So the right answer is option A. Next one is question number 13. When a neuron is in a resting state that is not conducting any impulse, the axonal membrane is. अब जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? सो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू Na प्लस आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू K प्लस, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड, इक्वली परमिएबल टू बोथ Na प्लस एंड K प्लस. थर्ड, इम्परमिएबल टू बोथ Na प्लस एंड K प्लस. एंड लास्ट, कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू K प्लस आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू Na प्लस. तो ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होती है, इसलिए एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ. तो एक्सॉन के अंदर मतलब एक्सोप्लाज्म में जो है क्या है, मतलब जब रेस्टिंग स्टेट में होता है पोलराइज स्टेट में, तो आउटर साइड आउटर सरफेस कैसा है इसका पॉजिटिव, इनर जो है वो निगेटिव है. ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में. दिस इज द सिचुएशन. व्हाई दिस इज सो, ये ऐसी कंडीशन क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो हियर एंट्री टू Na प्लस इज बैंड, नॉट अलाउड. ठीक है, सोडियम को अंदर एंट्री नहीं है. ओके, K प्लस कैन डिफ्यूज फ्रीली इन, K प्लस को अंदर डिफ्यूज होने की परमिशन है, राइट. तो इससे क्या हो रहा है, ये मेंटेन करने के लिए और एक चीज़ की जाती है दैट एक्टिवली Na प्लस आर सेंट आउटसाइड. ओके, तो Na प्लस को जो है बाहर भेजा जा रहा है और K प्लस को अंदर लिया जा रहा है. अब ये करते समय भी क्या है कि 3 Na प्लस दे आर मूविंग आउट और उसके बदले में अंदर क्या आ रहा है 2K प्लस. अब अगर ऐसा चलता रहा तो क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव आयंस की मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाएगी एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड निगेटिव. अब अंदर निगेटिव क्यों? बेसिकली दिस इज जस्ट कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस व्हिच आर मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द एक्सोप्लाज्म. सेकेंड थिंग, negatively charged proteins are also there inside the exoplasm. Okay, and when the K plus cannot balance them, what will happen automatically? There will be negative charge inside, that is in the exoplasm. Okay, so what will be the answer then? Last one, comparatively more permeable to K plus ion and nearly impermeable to Na plus. अब अगर ये चीज़ें कंफ्यूज होती है तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है. Na, इसे अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा ना मतलब ना मत आओ, डोंट कम इनसाइड, लाइक दिस. सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, अंदर ना आना, मना कर रहा है वो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. देन गुड विजन डिपेंड ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो एक चीज़ उन्होंने बताया वाली कि गुड विजन, एक अच्छी नज़र किस पर डिपेंड करती है, तो फूड कैसा होना चाहिए, कैरोटीन रिच होना चाहिए. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. तो इसी
से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन ऐसा क्यों है. सो विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम द कैरोटीन, एक ऑप्शन. दूसरा, फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट. थर्ड, रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. रेटिनल इज द लाइट absorbing part of all the visual photopigments. Now 4 options are given, and below that 1 2 1 3 4 1 3 2 3 4 like these options are given. Okay, so we need to understand these things properly. अब हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि इसमें क्या दिया वाला है. तो देखो, पहला स्टेटमेंट जो है, विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम द कैरोटीन. तो बीटा कैरोटीन, ठीक है, जिससे आगे चल के क्या बनने वाला है, रोडोप्सिन, रेटिनल. उसमें रेटिनल और ऑप्सिन दोनों है, isn't it? तो वो रेटिनल किससे बन रहा है, कैरोटीन से. सो द ऑप्शन ए इज फाइन, नो प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शन ए. ओके, दैट ऑप्शन, नॉट ऑप्शन ए, फर्स्ट वन. सेकेंड वन, फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द, नाउ दिस इज जस्ट एब्सर्ड थिंग, it is nowhere in the description. Third, retinal is the derivative of vitamin A. तो यही तो चीज़ हम बोल रहे थे, चलेगा. retinal is the light absorbing part, ठीक है. retinal is the light absorbing parts, तो ये भी ठीक है. so fourth one is also fine of all visual photopigment. so 1 3 and 4 these are fine, so right answer should be this one. okay, only second statement goes wrong here, nothing else. next question, photosensitive compound in human eye is made up of. Now next question, this is quite simple, वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की थी. फोटोसेंसिटिव पिगमेंट कंपाउंड वो किस चीज़ से बने वाला है. सो द राइट आंसर, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, रोडोप्सिन, मेकऑप्सिन और रेटिनल, दिस आर द राइट आंसर. सो दिस B is the right answer, opsin and retinal. Then a gymnast is able to balance his body upside down even in total darkness because of. अब अगर कोई जिम्नास्टिक करता है तो उसका जो बैलेंस है बहुत ही बढ़िया होता है, तो वो कैसे हो सकता है. तो उसमें ऐसा खास कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से होगी. तो बैलेंसिंग वाला हिस्सा कौन सा है, वेस्टिबुलर एपरेटस, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कर्टी और कॉक्लिया. व्हाट इट कुड बी, क्वाइट सिंपल, इट इज वेस्टिबुलर एपरेटस. वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनल वाला स्ट्रक्चर, इजंट इट. सो ए इज द राइट आंसर. Next question, in mammalian eye the fovea is the center of the visual field where. तो फोविया के बारे में क्वेश्चन है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि मैमिलियन आई में फोविया करके जो स्ट्रक्चर है, सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड. ओके, सो इज इट ऑप्टिक नर्व दैट लीव्स द आई, only rods are present, only rods than cones, more rods than cones, and high density of cones occur but has no rods. So you must know that what is the speciality of fovea. Fovea basically has got greatest visual clarity for the object, and this visual clarity when it is possible, अब ये कब पॉसिबल हो सकती है विजुअल क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा, when there will be more cones, बिकॉज रॉड्स दे वर्क, रॉड सेल जो होते हैं वो कहाँ पर डीम लाइट में काम करते हैं, ब्राइट लाइट में काम कौन कर सकते हैं, कोन्स. तो वहाँ पर कोन्स ज़्यादा होने चाहिए विजुअल एक्विटी के लिए. सो राइट आंसर विल बी डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो फॉल्स स्टेटमेंट वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट हियर. गलत क्या है ये हमें देखना है यहाँ पर. सो इट इज राइट एफ राइट इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन. F. Okay, so retinal is the light absorbing portion of the visual photopigment. This is true, इसमें कोई गलत नहीं है. So as a statement this is fine. Second, in retina the rods have the photopigment rhodopsin while cones have 3 different photopigment. ये भी सही है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं दिखती है. Retinal is the derivative of vitamin C. Is it so? See, खोदा पहाड़ निकला चुहा, कितनी सिंपल चीज़ निकली. तो ये है गलत वाला स्टेटमेंट और सही वाला आंसर. ओके, rhodopsin is the purplish red, ये भी ठीक है. So as a statement these 3 are fine. Only the false, wrong, incorrect statement is C. So the answer is C. Next question, part A, B, C and D of human eye are shown in the diagram. Select the option which gives correct identification along with its function or characteristics. ठीक है, तो इस डायग्राम में हमें आई का स्ट्रक्चर बताए वाला है और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पूछा है, गलत नहीं पूछा है. Okay, so B, is it a blind spot, has only a few rods and cones. B, blind spot है क्या. C, aqueous chamber है क्या. Reflect the light which does not pass through the lens. Is it so? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या, वो नहीं. D,
choroid, anterior part of the ciliary body. D, anterior है क्या, वो नहीं, posterior है. Then A, retina contains photoreceptor rods and cones. A is the retina. So A, I hope you can see in the diagram. If you want I can zoom it in. लेकिन ऐसा ना हो कि आपके वो, just give me a second. Here it is. Now you can see there. So A is the innermost layer, isn't it? तो शायद आप ये देख सकते हैं, नहीं शायद आप मिस कर रहे हैं इसे. Yes, now you can see. So A, yes, it is fine. It is the retina and it contains photoreceptor cells, rods and cones. So option D is fine, isn't it? So let us mark out this D. Okay. हर एक ऑप्शन के गलत चीज़ें भी देख ली अभी हमने. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20. लेट मी सी, इज इट विद इन द फ्रेम? यस, इट इज फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 20. विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो ह्यूमन ईयर का ऐसा कौन सा हिस्सा है कि जिसका हियरिंग में तो ऐसा कुछ खास रोल है नहीं, बट स्टिल इट इज टू मच रिक्वायर्ड, टू मच इंपॉर्टेंट. सो I think this one we have just discussed in that case of gymnast. So the answer is vestibular apparatus because it plays role in the balancing. Okay, ear ossicle, organ of Corti, eustachian tube, they all are important in hearing. Okay, next one is question number 21. Okay, so what is the question? To zoom out of it. Yes, the purplish red pigment rhodopsin contained in the rods types of photoreceptor cells of human eye is a derivative. Just we have solved this question. So the right answer is vitamin A. Okay, next question. The transparent lens in the human eye is held in its place by. So let me see, is it enough or I'm disturbing you? थोड़ा सा जूम आउट करते हैं. Yes, I think this is fine. Yes, now it is fine. So question number 22. Transparent lens in the human eye is held in its place. तो लेंस को कौन पकड़ के रख रहा है? This is the question. Now अगर आपकी डायग्राम आपने अच्छे से याद कर लिए, this is quite simple. Is it smooth muscle? Is it ligament attached to the iris? Is it ligament attached to the ciliary body? Now that part of diagram, see if you can. ऐसा लेंस है और लेंस को ऐसा पकड़ के रखे वाला. What is this? This is the ciliary body, isn't it? And now it is attached with this such ligaments, isn't it? तो ऐसे ये क्या है, ligaments है, ये क्या है, ciliary body है, और ये क्या है, लेंस है. So the right answer will be the C. Okay. Next question number 23. Which of the following structure or region is incorrectly paired with its function? तो कौन सा है कि जहाँ पर incorrect pairing है? Okay. So I think still it is not. Okay, see here, which of the following structure or region is incorrectly paired with its function? Okay, hypothalamus, production of releasing hormone and regulation of temperature, hunger and thirst. तो ये जो है hypothalamus का बिल्कुल सही function दिए वाला है. That hypothalamus has releasing hormone which control over the pituitary, releasing factor, inhibiting factor. Okay. एंड सेकेंड थिंग टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर थर्स्ट. तो अभी तो हमने टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए वाला है. बिसाइड दैट हंगर एंड थर्स्ट सेंटर्स आर ऑल्सो देयर इन द हाइपोथैलेमस. सो दिस वन कैनॉट बी द आंसर बिकॉज दिस इज फाइन एंड हियर वी आर सपोज टू फाइंड आउट इनकरेक्ट वन. सेकेंड इज द लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स that interconnect different regions of brain and control movement. So what about the limbic system? Limbic system क्या है? It is the innermost core part of that cerebrum, particularly cerebrum mid brain के diencephalon के center में आता है, ऐसे बोल सकते हैं आप. So it consists of fiber tracts, सही है. Interconnect different regions, ये भी ठीक है.
controls movement, ये गलत है, because limbic system is not related with the movement, rather it is related with some kind of say, emotional behavior, emotional or excitation, arousal or stimulation. तो मूवमेंट का यहाँ पर नहीं है, जो इमोशनल या सेंटिमेंटल चीज़ें होती है उन पर होल्ड होता है लिम्बिक सिस्टम का. ओके, इमोशन, मेमोरीज एंड स्टिमुलेशन और अराउजल. Okay, no involvement in the movement. So this is the wrong thing, it is given here. So option B seems to be the answer. Okay, what about C? Medulla oblongata control respiration. Yes, medulla oblongata has got respiratory rhythm center, isn't it? Cardiovascular reflexes are also controlled. So ये as a statement तो ठीक है, मैं incorrect ढूंढना था. Corpus callosum, band of fiber connecting left and right cerebral hemisphere, तो ये भी सही है. सो सी डी ये भी मतलब एज अ स्टेटमेंट सही है, लेकिन मूवमेंट वाली चीज़ डाल करके इन्होंने सेकेंड भी लिम्बिक सिस्टम को गलत कर दिया. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. नीजल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ. नीजल्स बॉडी किस चीज़ से बने वाली है? इज इट न्यूक्लिक एसिड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन एंड लिपिड, फ्री राइबोसोम एंड आरईआर. नाउ दोज हु डोंट नो दिस वन, इट इज मेड अप ऑफ फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सो नीजल्स बॉडी कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द साइटोन दे आर प्रेजेंट, इजंट इट? एंड साइटोन में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर भी, और जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर भी ये नीजल्स बॉडीज होते हैं. तो नीजल्स बॉडी हम ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं जब भी हम न्यूरॉन की डायग्राम बनाते हैं. तो वो नीजल्स बॉडी किस चीज़ से बने वाले? सो दे आर मेड अप ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड राइबोसोम कोटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. Next, question number 25. Which of the following statement is correct? So, cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. Second, cornea is a convex transparent layer which is highly vascularized. Third, cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive part of the eye. And last, cornea is an external transparent and protective proteinaceous covering of the eyeball. So, this question basically has been challenged in the year 2019. फॉर इट्स करेक्टनेस. सी क्या हुआ था एक क्वेश्चन के बारे में कि उन्होंने जो आंसर की में दिया था एज आंसर सी दिया था, दैट कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट इलास्टिन फाइबर. कॉर्निया में जो है वो इलास्टिन फाइबर्स नहीं है, रैदर वो कौन से है? कोलेजन के फाइबर्स है. दैट इज इलास्टिन माने येलो वाले होते हैं और कोलेजन माने इनको वाइट फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है. तो कॉर्निया में जो वाइट फाइबर्स है, ना कि येलो फाइबर्स. तो ये पहला तो गलत हो गया. कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज़ हाईली वेस्कुलराइज, तो ये सेकेंड ऑप्शन में जो दिया वाला है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर, यहाँ तक ठीक है. वेस्कुलराइज में दिक्कत हो सकती है. ओके. रिगार्डिंग वेस्कुलरेशन देयर इज नो सच मेंशन. ओके. सो बी also goes wrong. Here we are supposed to find out the correct thing. C क्या कह रहा है? consist of dense matrix of collagen and is most sensitive part of the eye. ओके. तो ये जो है ये आंसर बोला था क्या कह सकते हैं, मतलब एनटीए तो अभी ठीक है, लास्ट ईयर एनटीए की तरफ से आया वाला जो है सी का था, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स ने डी को भी मतलब चैलेंज किया था कि नहीं, डी इज ऑल्सो राइट आंसर. सो कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल. तो इसमें एक ही सिर्फ चीज़ गलत है. जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो स्क्लेरा होती है, और स्क्लेरा का सिर्फ 1/3 हिस्सा जो सामने वाला है उसे हम कॉर्निया कहते हैं. तो कॉर्निया को हम पूरे का पूरा ये क्रेडिट नहीं दे सकते कि पूरे आईबॉल का वो प्रोटेक्टिव कवरिंग कह करके. सो दिस इज द रॉन्ग थिंग इन दैट क्लेम. वो जो क्लेम किया था उसमें गलती ये थी कि कॉर्निया पूरा का पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बन सकता है आईबॉल का. स्क्लेरा एट द मोस्ट यू कैन से, बेसिकली यू हैव टू से कॉर्निया एंड स्क्लेरा, और एट द मोस्ट स्क्लेरा इज फाइन. लेकिन जो सिर्फ 1/3 पार्ट को कवर कर रहा है उसे हम पूरे का पूरा आईबॉल का प्रोटेक्शन का उसे क्रेडिट नहीं दे सकते. इसलिए डी जो है वो गलत था और उसे एनटीए ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था. सो सी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट फ्रॉम द नीट. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? वही चीज़ें डबल आ रही है. सो इट इज हाइपोथैलेमस. सो राइट आंसर इज ए. ओके. Did not to discuss even this thing. Now let us switch to the aims. Not so many questions, hardly 10 or 11 questions are there. So bipolar nerve cells are present in. Now look at this. This is the question from 2012. So bipolar
जो नर्व सेल्स है वो कहाँ पर होते हैं. सो स्किन, टैक्टाइल कॉर्पस्कल, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना ऑफ द आई, ऑल ऑफ दिस. तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि बायपोलर नर्व क्या चीज़ है, बायपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं. सो नॉर्मली whenever we draw neuron, we draw multipolar neuron. So look at the types of the neuron. One type is this one, multipolar, which we draw number of dendrites and single axon. दूसरा एक है बायपोलर जिसे एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, और तीसरा एक है ऐसे वाला जिसे एक ही ब्रांच होती है. इसकी एक ब्रांच एक्सॉन करके काम, डेंड्राइट करके काम कर सकती है, दूसरी एक्सॉन करके काम कर सकती है. तो इसे सूडो यूनिपोलर बोला जा सकता है, इसे बायपोलर कह सकते हैं, और ये जो है मल्टीपोलर. तो बायपोलर नर्व सेल कहाँ पर होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई. यू नीड टू रिमेंबर दिस वन. ओके, नेक्स्ट is the fenestra ovalis is the opening of. Now what is this fenestra ovalis? Fenestra ovalis ये क्या चीज़ है? What is this fenestra ovalis? So fenestra ovalis, it is the oval window. Now this is the question from the ear anatomy. Ear anatomy से ये question आ गया है. तो fenestra ovalis माने oval window. अब oval window को समझना होगा हमें. देखो यहाँ पर जो है ये tympanic membrane है. ओके, अब tympanic membrane को ये ऐसे malleus incus और ये steps ऐसे कुछ ऐसे जोड़े गए, एंड दे आर नॉकिंग दिस ओवल विंडो. ओके, ये इधर अभी क्या है, कॉक्लिया का ये ओवल विंडो यहाँ पर बता रहा है. सो दिस ओवल विंडो इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा ओवैलिस. सो cranium cannot be the answer. Okay, brain cannot be the answer. Now point is that tympanum or tympanic cavity. So this middle ear cavity also called as tympanic cavity. So the right answer will be C. Okay. Next question, multiple. Now look at this. This is the question from 2012. That is why some old terminologies have been used in this question. Then multipolar nerve cell are present in. अब multipolar nerve cell कहाँ पर होते हैं? Okay. Now ये क्वेश्चन के बारे में भी एक स्टोरी बताई जा सकती है. मल्टीपोलर नर्व सेल. ओके, सो तब का जो बोर्ड था, AIPMT चलती थी तब यहाँ पर इसका जो आंसर था वो सेकंड दिया हुआ था, जो कि गलत आंसर था. उन्होंने आंसर दिया था डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. बेसिकली इसमें जो है बाइपोलर वाले हमें देखने को मिल सकते हैं. सो दैट कैन नॉट बी द आंसर. ओके, सो द ओनली आंसर इट इज ब्रेन. Okay, now you need to understand it. Multipolar neuron, they are found in the brain and spinal cord. Okay, brain और spinal cord दोनों जगह पर सिर्फ हमें multipolar neuron देखने को मिलते हैं. दो डेंड्राइट से ज़्यादा अगर डेंड्राइट रहते हैं तो हम उसको मल्टीपोलर बोलते हैं, जैसे मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया था. देन कॉक्लिया एंड रेटिना हैव बाइपोलर न्यूरॉन. कॉक्लिया और रेटिना उसमें जो है बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. डॉर्सल रूट गैंग्लिया इट हैज़ गॉट सूडो यूनिपोलर. जस्ट आई हैव ड्रॉन, आई थिंक अभी मैंने सूडो यूनिपोलर आपको जो बताया था वो होता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया में. ओके, सो द राइट आंसर विल बी हियर, इट इज ब्रेन. ओके, यू हैव टू कीप दिस इन योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंपल्सरी मल्टीपोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन रिसीव सिग्नल थ्रू देयर. नाउ आई हैव टू एडिट दिस क्वेश्चन अ बिट. इट शुड बी लाइक दिस, ब्लैंक्स आर देयर. It should be like this. Yes, neuron receives signal through dash dash. Okay, and send signal to other neurons through their dash dash. Okay, so dendrites is it? So neuron receives signal through dendrites. Neuron को signal जो है वो dendrite से मिलते हैं क्या? And send signal to other through their receptor. So receptor is it the part of neuron? No. Okay, so it cannot be the answer. ये तो आंसर नहीं बन सकता है. So we have to reject the first. Okay, second, end feet, nothing. ऐसे कोई स्ट्रक्चर कभी पढ़ा भी नहीं है और कहीं मैंने देखा भी नहीं है. थर्ड, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सो ठीक से ये इसे समझना होगा. सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट फर्स्ट ब्लैंक के लिए और सेकेंड ब्लैंक के लिए एक्सॉन. अब इससे पढ़ते. न्यूरॉन रिसीव सिग्नल थ्रू सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स. ओके, थ्रू देयर सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट. ये ब्लैंक मेरे ख्याल से यहाँ पर होनी चाहिए. एंड सेंड सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन थ्रू देयर एक्सॉन. यस, सी सीम्स टू बी फाइन. ट्रांसमीटर वेसिकल्स एंड एक्सॉन, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द राइट आंसर विल बी सी. न्यूरॉन जो है वो सिग्नल कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के थ्रू, और भेज के कहाँ किस चीज़ से रहे? एक्सॉन से वो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं.
Next question. Now for this question you need to understand this neuron structure. तो न्यूरॉन का एक ये न्यूरॉन हुआ, ये दूसरा हुआ, तो इसका डेंड्राइट जो है वो इसके एक्सॉन से यहाँ पर सिनेप्स है, तो क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में ही. ओके, so dendrite and this cyton it receives and this axon carries that impulse away from the cyton. Okay, next one. Which of the following ions are required for nerve conduction? अब nerve conduction के लिए कौन से ion required है? So sodium, potassium, you are quite sure I know this. So many of the student may mark it out as sodium and potassium, but no, calcium is also equally important. Calcium is also equally important. So these ions are required for nerve conduction. Ca++, Na+, and K+. Okay, it is not just Na+ and K+. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द रिफ्लेक्स आर्क. तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्स आर्क बताई है. सो लेट अस जूम इट इन. ओके, तो ये है रिफ्लेक्स आर्क. और क्या है करेक्ट ऑप्शन 1 to 7 दिए वाले, इसमें के करेक्ट ऑप्शन हमें पिकअप करने हैं. ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं. पहले तो हमें क्या देखना होगा, एरोज देखने होंगे. लुक एट दिस एरो. इसका मतलब है ये क्या बन गया सेंसरी, और ये जो इम्पल्स वापस ला रहा है ये बन गया मोटर. ठीक है, ये जो है बाहर है वो बन जाएगा डॉर्सल रूट, और ये है नीचे वाला ये बन जाएगा वेंट्रल रूट. ओके, इसी तरीके से इसके अंदर की जो है वो क्या बन जाएगी सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट के अंदर की, और वेंट्रल रूट के अंदर की मोटर न्यूरॉन. अब ये तीसरा जो है वो इंटरमीडिएट या एसोसिएशन न्यूरॉन 3 नंबर वाले को बोल सकते हैं, ये वाला हिस्सा. फाइन. और 7 नंबर का इट कैन बी मसल रिसेप्टर. ओके, 7 नंबर का. सो 1 नंबर को सेंस ऑर्गन चलेगा, 2 नंबर को सेंसरी नर्व दौड़ेगा, 3 नंबर का डॉर्सल हॉर्न, 3 नंबर अंदर जो है हॉर्न और बाहर जो रहता है रूट चलेगा, 4 नंबर इंटर न्यूरॉन. ठीक है, 5 नंबर क्या हो सकता है वेंट्रल हॉर्न. ठीक है, 6 नंबर मोटर नर्व, 7 नंबर इफेक्टर. सो फर्स्ट ऑप्शन सीम्स टू बी फाइन, पहला ही सही लग रहा है. सो व्हाट अबाउट सेकेंड में क्या है, 2 को सेंसरी, 3 को वेंट्रल, 4 कहाँ पर गलत है फिर, क्या दोनों एक जैसे है क्या. 3 को वेंट्रल हॉर्न बोला गया है सेकेंड में, सो इट इज रॉन्ग वन. ओके, सो सेकेंड तो नहीं हो सकता. Just may pick up the pen. So B cannot be the answer. A is most probable. C में एक को इफेक्टर और D में भी एक को इफेक्टर. So C and D are also not possible. क्योंकि इसको एक को इफेक्टर बोला हुआ है. Looking at the arrow direction, it is very clear that number 1 must be that receptor part or sense organ. Not receptor, sense organ. Next question. During conduction of nerve impulse, what exactly happen? जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा होता है तो क्या होता है, Na+ मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म, Na+ मूव्स आउट ऑफ एक्सोप्लाज्म, K+ मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म एंड Ca++ मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म. सो जस्ट आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग. Otherwise when it is resting states, Na+ is not allowed to come in, but when there is conduction of nerve impulse, Na+ channel जो होता है वो गेट ओपन हो जाता है. सो यही तो चीज़ है. सो A is the right answer. Na+ बाहर जाने का ये तो मेंटेन करने के लिए होता है, वो बाद में होता है इम्पल्स कंडक्शन के बाद में. K+ और Ca+ का तो ऐसा कोई रोल है नहीं. इट इज़ द ओनली मूवमेंट ऑफ Na+. ओके, देन नेक्स्ट. ड्यूरिंग रेस्ट सोडियम पंप ऑफ नर्व रिजल्ट इन. जब रेस्टिंग कंडीशन में तो सोडियम पंप ऑफ नर्व रिजल्ट्स इन क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली रेस्टिंग कंडीशन में. मोर Na+ पंप्ड आउट देन K+ आयन टेकन इन. फर्स्ट. सेकेंड क्या बोलता है, Na+ पंप इन विदाउट एक्सचेंज विथ एनी अदर आयन. ओके. थर्ड, एक्सचेंजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ Na+ एंड K+. एंड लास्ट वन, मोर Na+ बीइंग पंप्ड इन देन K+ आयन पंप्ड आउट. ओके, अभी तो ये चीज़ें बोली थी. रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, मोर Na+ पंप्ड आउट. अंदर आने की तो उनकी बात ही नहीं है, जैसे कि उनके नाम में ही ना है. सो Na+ को जब रेस्टिंग स्टेज है तब क्या किया जा रहा है, Na+ सेंट आउटसाइड, और वो भी किस रेशियो में,
3:2 में, मतलब 3 Na+ बाहर जा रहे तो 2 K+ अंदर आ रहे, ठीक है. सो मोर Na+ pumped out. So this is the proper thing, resting condition called as polarized condition. Now few question over assertion reason, just 3, not so many. So brainstem contains centers for controlling activities. Okay, brainstem contains center for controlling activities. Reason, brainstem is very sensitive. Okay, what we can say about this? Brainstem contains center for controlling. Yes, it is brainstem, that is a part of hindbrain, isn't it? So उसमें कंट्रोलिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी सारे सेंटर है, थर्मो रेगुलेशन का भी हो गया, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर देखे थे. देन रीजन, ब्रेनस्टेम इज वेरी, एंटायर ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव. व्हाई ओनली ब्रेनस्टेम? सो बोथ ऑप्शन आर फाइन, बट अगेन एज आई से मेनी टाइम्स, separate pieces of knowledge. So answer is B. Okay, next question. Question number 10. The chemical stored in the synaptic vesicle, it is termed as neurotransmitter. True, सही है. Then reason, synaptic vesicle release these chemical in the synaptic cleft. ये भी सही है जब impulse conduction हो रहा है. लेकिन क्या कोई उसे रीज़न बोल सकते हैं? उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलने का ये रीज़न बन सकता है क्या? सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज दिस केमिकल? नहीं, सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज करता है बोल के तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है. सो दे ट्रांसमिट द इम्पल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, इजंट इट? तो फिर एक बार वही चीज़, सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज. सो आंसर विल बी बी. एंड आई थिंक फ्यू मोर, 3 more. So question number 11. The imbalance in the concentration of Na+, K+ and protein generates result resting potential. ठीक है, बराबर है. Na+ बाहर ज़्यादा है, K+ अंदर ज़्यादा है, तो इम्बैलेंस होने की वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है. रीजन, टू मेंटेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Na+ and K+, न्यूरॉन यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. व्हाट यू से? नाउ इज देयर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ATP एनर्जी? श्योरली इट इज़ ATP एनर्जी, इजंट इट? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो चीज़ है गलत है. सो एज अ स्टेटमेंट रीजन इज अ फॉल्स. एक स्टेटमेंट करके रीजन फॉल्स है, असर्शन तो सही है, तो ऐसे केस में आंसर बन जाता है C. सो C इज द राइट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आयन. नाउ सी, एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आयन. इज इट सो? सोडियम को तो वो अंदर नहीं आने देता है, तो परमिएबल कैसे हो सकता है? सो स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ फॉल्स. अगर स्टेटमेंट ही गलत है, even we did not to read the second part, so answer is, you can blindly mark D. रीजन क्या दिया अभी चलो पढ़ लेते हैं. रेस्टिंग स्टेट न्यूरॉन डज नॉट कैन कंडक्ट एनी इम्पल्स. अभी वो चाहे जैसे वो सही हो या गलत हो, ऑप्शन डी इज श्योर, क्योंकि स्टेटमेंट गलत वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ डी के ऑप्शन में ही आते हैं. ओके, देन last question 13. Cerebellum is related with a skillful voluntary movement and involuntary activities like body balance and equilibrium. okay, ठीक है. cerebellum skillful activity में काम में आता है, बैलेंसिंग का उसका काम है, अभी हमने डिस्कस भी किया था. रीजन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ hindbrain and it is situated behind the pons. अगेन ये भी cerebellum के बारे में, ठीक है. cerebellum, आई होप यू कैन रिकलेक्ट व्हाट इज cerebellum. याद तो होगा cerebellum क्या होता है. ये ऐसा पॉन्स वरोली जब बना देते हैं हम, ठीक है, तो इसके नीचे हम ऐसा मिडुला ड्रॉ करते हैं, और इसके इधर जो है ये ऐसा सेरेबेलम बना देते हैं. सो रिगार्डिंग दिस सेरेबेलम, बैलेंसिंग में इसका रोल है. तो ये भी सही है, ये भी सही है. व्हाट अबाउट एक्सप्लेनेशन? नो, जस्ट अगेन सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज. सो आंसर विल बी बी. ओके, सो दिस वाज द सेशन. सो विद इन आई थिंक 53 minutes we have completed this session. So it's kind request for all of you, because exams are not far away from today. I think yes, it is 19 June. So a month and a week is there. So hardly 37 days are with you, and by the 5th of next month, that is July, we will complete this PYQ session. So please attend this session. This will help you a lot, I'm sure, very sure. Okay, so with this note, and tomorrow's session will be at 3 p.m. as it is. Okay, so let us wind up this session, and
I will see you, most of you, those who missed today's episode. Okay, thank you very much.